ready. Fine. If things are ready from your side and from my side, let's begin the program. And this is, I remind you that this program I am doing for the welfare of my friend and for his good health. And I request all of you to kindly, if you like this program, please offer your prayers. We start this. Everybody wants to live happy and successful life. Baba, hai ki nahi? There is nobody in this world who wants to be unhappy. In fact, I have never seen a person who comes to the temple and who asks, Sir, Bhagwan, aapke paas aaya hu, I have come to you, and you know what? I have been so happy from so long. I want to change now. Can you give me some unhappiness, please? Have you ever seen anybody saying like that? Huh? Have you ever seen anybody saying like that? Nobody says that. Nobody says that. Kabhi khushi, kabhi gum. अगर खुशी कंटिन्यू हो सकता है तो सबको खुशी चाहिए, गम नहीं चाहिए किसी को, है कि नहीं? Everybody in this world wants happiness. Nobody wants unhappiness. But the problem is there are secrets there. Not everybody is happy. Not everybody is prosperous. There are secrets to it. Today we are going to unwind the first secret to become happy, which is positive thinking. How to develop this? I am not a person who is going to give you a technical mental workshop program where we are going to only talk about mind and thinking and thoughts and this and that. That's fine. I am a practical person. By God's grace, I got time enough. I had a lot of interest in my life to serve the society from very teenage. And I just utilized all that, what my zeal for service was to read the scripture. So I read the scriptures from last 15 years. I've been reading and researching and a lot of learning through all these big books and volumes of books and commentaries of different spiritual teachers. So I learned a lot from there, and then I applied it and taught it to so in so many people's life, I'm seeing the difference. So based on a practical thing, I am going to teach you. And I can assure you, if you are with me, in next 25 minutes or so, less than 20 minutes, I am going to make you smile, and that smile is not going to be merely out of a joke, which I am not so good at. I sometimes crack jokes, but not too much. That smile is not going to be out of just a joke. That smile is going to be because your heart will feel very happy. This is my promise to you. This is my promise to you. Just remain connected for next 25 minutes and see this. I am going to make you smile. I'm going to make you probably cry tears of joy, not of sorrow. आपको मैं ऐसा एक्सपीरियंस दिला सकता हूँ 25 मिनट के अंदर अब से कि आप लोग बोलोगे, अरे साहब जी, मेरे तो आंख से क्या हो गया, आंसू निकल गए। और वो आंसू कहाँ से निकलेंगे? वो हमारे गम के आंसू नहीं होंगे, वो हमारे खुशी के आंसू होंगे। तो अगर आपको ऐसा एक्सपीरियंस चाहिए तो आप मेरे साथ बने रहिए नेक्स्ट 25 मिनट के बाद। उसके बाद फिर हम कुछ और करेंगे, उसके लिए एक और चीज बताऊंगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमको ये सीक्रेट्स ढूंढने हैं भाई, सीक्रेट समझना है। तो लाइफ जो है, सबसे पहले अपने लाइफ के बारे में बताते हैं, क्योंकि क्या है ना, लाइफ में सीक्रेट्स अगर सीखना है, इफ यू टू लर्न द सीक्रेट्स ऑफ लाइफ, डियर फ्रेंड्स, भाइयों बहनों, देवी और सज्जनों, आपको ये समझना है, इफ यू वांट टू लर्न सीक्रेट्स ऑफ लाइफ ना, पहली चीज आपको समझना है कि लाइफ कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। लाइफ कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लाइफ में, है ना। तो एक बार की बात है कि देयर वाज अ इंटरव्यू गोइंग ऑन, and as the interview was going on, there were so many candidates which are there, outside, which were waiting, so many, something like 100 people, and they had only one vacancy. So the interviewers came out and said, my God, we don't want to interview 100 people. So they said, Arey Baba, shortlist we want to do, we want to declare now only. We want somebody responsible for, so बोलते हैं मुझको स्पॉटलाइट में कर दीजिए सर, अगर आपके पास वो ऑप्शन है। मैं स्पॉटलाइट कर लेता हूँ, ठीक है। तो जब भी मैं ऑफ करूंगा तो स्पॉटलाइट पे आप मेरे को देख सकते हो, नहीं तो मेरे स्लाइड्स को देख लोगे तो आपको ज्यादा आनंद आएगा, आपको ज्यादा अच्छा भी लगेगा। भाई इम्पर्सनल नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। तो ये इंटरव्यूअर्स बाहर आके बोले, इतना 100 लोग का इंटरव्यू कौन लेने वाला, हु विल टेक 100 पीपल इंटरव्यू। दे सेड दैट्स भाई शॉर्टलिस्ट करना है अभी, जस्ट टेल मी, वी वांट समबडी रिस्पांसिबल, वी वांट समबडी रिस्पांसिबल, वी वांट समबडी रिस्पांसिबल। इज देयर एनीबडी रिस्पांसिबल हियर? Let's shortlist so that we can have less people for the interview. So one person raised hand. One person raised said, sir, if you want somebody responsible, then you should select me for sure. And they said, really? Baba, we have to select you for what reason? Tell me the reason. He said, sir, last company, I was there. And in the last company, whenever something went wrong, so many troubles came in the company, and you will not believe it. So many troubles came, and I was there through all those struggles. All those problems were there, I was there. And every time the problem came, I'm going to tell you, everybody just told one thing. What was that? I am responsible, I am responsible, I am responsible. Because I am so responsible, so therefore you please select me.
So, I mean, in the last company, everybody told that he was responsible for all the problems. So the thing what I'm teaching you, dear friends, भाइयों और बहनों, देवी और सज्जनों, आपको हंसते हुए देख के मुझे बहुत खुशी लगती है. तो म्यूट में रखिएगा, डिफॉल्ट म्यूट में रखिए सबको प्लीज. ये रिक्वेस्ट है आपसे, ताकि सबका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा जाए, है ना, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ और कुछ नहीं, सबका एक्सपीरियंस अच्छा जाए. तो मैं आपको ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बोल रहा हूँ कि आप गलतियों के लिए रिस्पॉन्सिबल बनो. आई एम नॉट सेइंग दैट यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉब्लम्स इन लाइफ. आई एम सेइंग बी रिस्पॉन्सिबल फॉर चॉइसेस इन लाइफ. आगे देखते हैं, मेरे स्क्रीन पे आइए और मेरे साथ बने रहिए. यहाँ पे आप सामने देखोगे एक कोटेशन, आपको अगर याद करना है ना, तो भाइयों बहनों इस कोटेशन को याद कर लो. जो आपके सामने आ रहा है इसको शायद आप याद कर लो, क्योंकि यहाँ से सीक्रेट शुरू होते हैं लाइफ के. सीक्रेट्स ऑफ लाइफ बिगिन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट. प्लीज ट्राई टू लर्न दिस स्टेटमेंट. रिमेम्बर ही कर लो आप, है ना, लिखना है तो लिख भी लो इसको आप. Life is a series of choices followed by a series of consequences. I am not saying that you should be responsible for problems in life. I am saying be responsible for choices in life. Choices आपके जिम्मेदारी है. Choices जो आप लेते हो उसके हिसाब से consequences आते हैं. यह एक universal principle है. If you do not learn this principle, भाई और बहनों, देवी और सज्जनों, problems life में बहुत बढ़ जाते हैं. So be responsible for the choices. You are making choices every time you make a choice, every time you speak something, every time you do something, you are responsible because you have chosen to do it. आज हम कुछ करेंगे साथ में. If you make the choice to do, I am going to teach you something. If you make a choice to practice it for next 1 month, चलो 1 month छोड़ दो, 1 week, you make that choice and you will get one particular consequence, which I am telling you is positive thinking. And if you make some other choice, you will get some other consequence. Consequences को समझ के हमको क्या consequence चाहिए, उसके हिसाब से अपना choice देखना चाहिए. Our choices should be well thought over by understanding what consequences I need. So do not make random choices in life. I will want to tell you this. I have seen this throughout happening, this practically so often, so common everywhere, that people simply make choices based on someone else. किसी दूसरे को देखते हैं और उसके जैसा वो कर रहा है अपना choice बना लेते हैं. Why do I watch a particular movie? Because so many people are saying. Why do I have a particular hobby? Because so many people are talking about it. Why I do a particular thing? Because so many people, so many, खुराना जी के बेटा और खुराना जी की ये और वर्मा जी ने बोल दिया और हमारे भरद्वाज जी ने बोल दिया और चतुर्वेदी जी ने बोला कि त्रिवेदी ने बोला, किसी ने तो बोल दिया भाई, है कि नहीं. So इतने सारे लोगों को सुना के हम अपना क्या कर लेते हैं, चॉइसेस बना लेते हैं. इस तरह से चॉइस नहीं होता सर जी. मैं आपको बताता हूँ चॉइसेस कैसे करना होता है. आप मेरे सामने आके देखिए. आजकल तो खुराना और वर्मा की नहीं, आजकल तो हम जब वीडियो देख के चॉइस बना ले दिखते हैं. यूट्यूब वीडियो, खुराना वर्मा नहीं, अब तो क्या है कि यूट्यूब वीडियो देखा, ये चॉइस करेंगे हम भाई, इसमें बोला है वहां पे, है ना. ये वीडियो देखेगा, ये बोला, ये करना है हमको तो भाई. तो सर जी, भाइयों और बहनों, देवियों सज्जनों, चॉइसेस ना ऐसे नहीं बनाते. मैं आपको एक वीडियो देने वाला हूँ सर जी. मैंने एक वीडियो बनाया है मेरे YouTube चैनल पे, आप उसको जरूर देखिएगा. वहां पे आपको एक प्रिंसिपल बता रहा हूँ अभी सब कुछ, क्योंकि मैं इस लेक्चर में नहीं बता सकता आपको. ग्रेटिट्यूड, आपको जो पॉजिटिव थिंकिंग का प्रिंसिपल है वो ग्रेटिट्यूड है, वहां तक लेके जाना है मुझे तुरंत. अच्छा, आप एनोटेशन मेरे को बंद करना पड़ेगा फिर तो भाई. आप ना ये मत कीजिए, एनोटेट मत कीजिए सर जी. ये क्या हो जाता है ना यहाँ पे, नो एनोटेशन करना पड़ेगा मुझे. हाँ, remove everything. Sorry, just give me a second. आप ना annotate मत कीजिए because I want to stop. हाँ, thank you. क्या होता है नहीं तो फिर undo कर दीजिए. हाँ बिल्कुल. क्योंकि क्या होता है ना, फिर सब लोग को प्रॉब्लम आती है, तो आप उसमें कुछ लिखिए नहीं. आगे इधर ऑप्शंस, हाँ, डिसेबल पार्टिसिपेंट्स नोटिस. हाँ चलिए, अब ठीक है. तो क्या है कि हमको स्क्रिप्चर से समझना है चॉइसेस को. हमको खुराना जी, वर्मा जी, यूट्यूब वीडियो ये सब वगैरह से नहीं सीखना है. जहां जो स्क्रिप्चर बोलता है ना, स्क्रिप्चर में जो लिखा है उसके हिसाब से चॉइस बनाना चाहिए. तो क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ कि स्क्रिप्चर्स के हिसाब से चॉइस बनाना चाहिए? देखिए आपके सामने एक श्लोक है, ये श्लोक को आप गौर कीजिएगा, बहुत ही अच्छा श्लोक है. ये एक बड़े आचार्य रहे हैं. देयर इज वन आचार्य, वेरी बिग आचार्य, हुज नेम इज सनातन गोस्वामी. Sanatan Goswami was being taught by a very great personality called as Chaitanya Mahaprabhu. उनका नाम सुना होगा आपने, श्री चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं उनको, है ना.
तो भगवान के अवतार कलयुग में रहे हैं बहुत 550 साल पहले। बहुत ही अच्छी सुंदर सी एक छोटे से श्लोक में उन्होंने इतना सब कुछ बोल दिया। चलो उसको देख लेते हैं। संस्कृत में श्लोक है, बंगाली का श्लोक है, इसको मैंने ऐसे लिखा है, माया मुग्ध जीवेर नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवेर कृपा पाइले कैल कृष्ण वेद पुराण। क्या बोलते हैं जी? बोलते हैं हम जैसे लोग जो हैं, for conditioned soul, if he wants to divide his God consciousness, if he wants to know the secrets of a happy and prosperous life, then on his own he cannot know. आप अपने आप इन जो प्रिंसिपल्स हैं इनको समझ नहीं पा सकते। आपको कैसे प्रिंसिपल समझ में आएंगे? बोलते हैं सबसे आसान है, भगवान ने हमारे को शास्त्र दिया है जो भगवान की कृपा है। कृपा कैला, जीवेर कृपा कैला कृष्ण वेद पुराण। वेद और पुराण की जो है भगवान की कृपा है हमारे जीवन में। लोग बोलते हैं कि भगवान इतना दयालु क्यों नहीं है, कोरोना का वायरस आ गया, इतना प्रॉब्लम आ रहा है, अरे क्या है भाई ये, इतना प्रॉब्लम कर रहे हैं भगवान, अरे थोड़ा कुछ तो करो भगवान, कृपा तो करो, अरे वाई गॉड इज नॉट मर्सीफुल, ऐसा बोलते हैं लोग। तो मैं आपको बताता हूँ, गॉड की मर्सी ना आपके जीवन में ऑलरेडी है, सिर्फ आपको क्या करनी है, आपको उठा के पढ़नी है बस, क्या समझनी है, सुननी है किसी से। तो गॉड की मर्सी कहाँ से मिलती है? स्क्रिप्चर से मिलती है ना। तो शास्त्र है हमारे, जो वेद है, जो पुराण है, if you what you do, if you take up the teachings of the scripture and you make your choices based on scripture, then the mercy of God will come in your life, the consequences will be always good. तो जो मैं आज को बता रहा हूँ, आपको जो प्रिंसिपल मैं बता रहा हूँ, वो मेरा बनाया हुआ प्रिंसिपल नहीं है, वो कहाँ पे लिखा हुआ प्रिंसिपल है? शास्त्र में, वेद पुराण में लिखा हुआ प्रिंसिपल है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। तो ये आपको बताना था मुझे, ठीक है। मैंने जैसे बोला कि जो मेरा कोर्स होता है, कोर्स के बीच में से मैंने एक आपको छोटा उसका बताऊंगा कि उसमें एक सेक्शन बताऊंगा। तो 4 कंपार्टमेंट्स होते हैं हमारे लाइफ में, पर्सनल लाइफ, रिलेशनशिप्स का, सोशल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और सोशल कंट्रीब्यूशन और कम्युनिटी लाइफ। तो जो प्रिंसिपल पॉजिटिव थिंकिंग का होता है वो पर्सनल लाइफ में एप्लीकेशन का होता है। व्हेन यू अप्लाई द स्क्रिप्चर प्रिंसिपल्स ऑन योर पर्सनल लाइफ, then you will get the benefit, and for the personal life benefit what you need is you need positive thinking. Personal life improvement first principle is, अभी जो है मेरे सामने देखेंगे, हम अपने विचारों को थिंकिंग करना है ना, हमको थिंकिंग करना है। हमारा थिंकिंग जो है डिपेंड करता है किसके ऊपर? हम क्या विजन रखते हैं इस संसार के लिए। लाइक दे से ना दैट ग्लास इज हाफ एम्प्टी और ग्लास इज हाफ फिल्ड। ऐसा क्यों होता है? Some people think that glass is half empty, some people think that glass is half full. ऐसा क्यों होता है? वो आपके विजन के उसकी वजह से होता है प्रॉब्लम। भाइयों बहनों, देवियों सज्जनों, 2 तरह के विजन हो सकते हैं आपके। आपका विजन डिटरमाइंस व्हाट वे यू विल रिस्पॉन्ड टू द सिचुएशन, वेदर यू विल थिंक नाइसली और नॉट, वेदर यू विल थिंक पॉजिटिवली और नॉट, वेदर यू विल बी थिंकिंग नेगेटिवली और पॉजिटिवली, डिपेंड्स ऑन योर विजन। आपका जो विजन है, यहाँ पे मैं आपका चश्मे का लेंस नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपके अंदर का एटीट्यूड के बारे में बता रहा हूँ। मैं आपके चश्मे का लेंस के बारे में नहीं बता रहा, मैं आपके अंदर के एटीट्यूड के बारे में बता रहा हूँ। समझ रहे हैं कि विजन टुवर्ड्स लाइफ मींस योर एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, एंड योर एटीट्यूड इज डिटरमाइंड। यू कैन हैव 2 टाइप्स ऑफ एटीट्यूड्स. If you are wanting to understand what are those 2 types of attitudes which will determine whether you think positively or think negatively, you please say yes or okay, and I am ready for it, I like it, I want to learn it. कुछ तो आप लिख दीजिए आप चैट बॉक्स में, ताकि मुझे पता चले कि आप हो मेरे साथ। Please type yes, I want, I want to learn, I want to know it, I'm really excited about it. Yes, कुछ तो आप टाइप कीजिए please, so that I know that you are with me. You want to understand what are those 2 types of attitudes. One of the attitudes will give you positive thinking, another attitude will give you negative thinking. तो वो कौन से 2 attitude हैं? तो आप चलिए yes बोल दीजिए या फिर कुछ बोल दीजिए, तो आप मैं समझ जाऊंगा कि आप एक्टिव हो, आप हमारे साथ हो और excited. Yeah, you are excited about it, you are with me and you are wanting to learn. Very good, thank you sir, thank you madam. So 2 तरह का ये जो है, मैं अब आपको आपके सामने बताता हूँ। हाँ, एक और चीज बताना था उससे पहले, we don't see the world as it is, we see the world as we are. उसी सिचुएशन में एक व्यक्ति पॉजिटिव सोचेगा, उसी सिचुएशन में एक व्यक्ति नेगेटिव सोचेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वी डोंट सी द वर्ल्ड एज इट इज, वी सी द वर्ल्ड एज वी आर। तो चेंज बाहर नहीं करना है, चेंज कहाँ करना है? बाहर नहीं करना है, चेंज कहाँ करना है? अंदर करना है। समझ गए आप? क्योंकि वी डोंट सी द वर्ल्ड एज इट इज, वी सी द वर्ल्ड एज वी आर, है कि नहीं? अंदर चेंज लाना होता है, बाहर नहीं। तो 2 तरह के एटीट्यूड, चलिए देख लीजिए। What is your world view? यहाँ पे ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए एप्लीकेशन पॉइंट है। एक वर्ल्ड व्यू होता है होटल वर्ल्ड व्यू,
मैं इसको बोलता हूँ, मैंने अपनी किताबों में लिखा है ये कि होटल वर्ल्ड व्यू सबसे पहला वर्ल्ड व्यू होता है। तो क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा कुछ देर के बाद, क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे, पहले एक एक्सरसाइज आने वाला है आपका उसके पहले। तो पहला वर्ल्ड व्यू होता है होटल वर्ल्ड व्यू। अभी होटल वर्ल्ड व्यू में क्या होता है, वी थिंक दैट दिस वर्ल्ड इज लाइक अ होटल, this world is like a hotel, this world should follow what, this world should follow the my rules, this world should function according to my expectations, I have this expectation, this is the way it should happen, this is how it should happen, this is the way it should be going. Everybody in this world should fulfill whose expectation, my expectation, my expectation, my expectation. This is what we call as hotel worldview. We go to the hotel, all of you must have gone to hotel, right? You must have gone to the hotels. When you go to a hotel, you order to the waiter, hey waiter come, 1 2 3 4 5 6 leke aao. You say like that, fulfill my expectations, bring what I want. In case if the waiter does not give you what you want, how do you behave? I am going to pay you money, this is the way you bring it, why did you not bring this? Similarly, if we have hotel world view, then we have an expectation that everybody around us, the whole world around us should give me my order, my list. What should happen in my life? 1 2 3. How should they behave? 1 2 3. What the situation should be? 1 2 3. We have here list, अपना पूरा ready रहता है. फिर क्या होता है जब ऐसा नहीं होता, the things which come are not according to your expectations, what happens to you? Frustration. You go into frustration. Why this is happening to me? Why he is not doing like that? Why he is not fulfilling my expectations? Why this thing is happening? Why? We think like that. That is hotel worldview of life. And if you have this hotel worldview, dear friends, I want to tell you something. If you have this hotel worldview, you will be frustrated in life. You will have so much negativity in life. You get a glass. You wanted a glass full of water. That is why when the glass is half filled, you say, well, why it is half empty? You don't say at least I have half. But you say it is half empty. Why it is half empty? I told you, na, I gave you the order, na? I told you 1 full glass of water. Why are you giving half? So this is the way it happens. देखिए जो सिचुएशन होता है ना, उसमें रिस्पॉन्स हमारा हमारे एटीट्यूड की तरह की वजह से आता है. इफ योर एटीट्यूड इज होटल वर्ल्ड व्यू, भाई और बहनों, देवी और सज्जनों, आपके जीवन में फ्रस्ट्रेशंस बढ़ जाते हैं. सिचुएशन सेम है, फ्रस्ट्रेशन अंदर है, बाहर नहीं होता. सिचुएशन सेम है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाते हैं. तो दूसरा वर्ल्ड व्यू आपको बताता हूँ. पहले उससे पहले एक छोटी कहानी बता देता हूँ आपको. दुर्योधन जो थे हमारे, दुर्योधन जो है, he was practicing hotel worldview. He was thinking that every time everything in this world should happen according to his calculations. I know what is best for me. I know what is good for me. Nobody else should tell me what is good. I want everything to happen my way only. So if something did not go his way, he was always into trouble. अभी इंद्रप्रस्थ मिल गया किसको? युधिष्ठिर को. उनको मिल गया हस्तिनापुर. इंद्रप्रस्थ में जाके दुर्योधन क्या बोलता है, यार ये मेरे पास क्यों नहीं है? Why this is not with me? Hey, he is not seeing what he has already. Such big Hastinapur, so much opulence, is so good everything. But he's only thinking about, I have this, but he has this much. He has got Indraprastha also. He has got this much, that much, this one. No. Envious, frustrated in life. I wanted all this. Why is he having this? All these things. This is a hotel worldview. Hotel worldview is not good for the gentlemanly people. For a person like Duryodhan, hotel worldview will always frustrate him. बेचारे का हमेशा नेगेटिव थिंकिंग ही रहता था. ऐसा क्यों है, वो वैसा क्यों है, हमेशा खोट निकलता था, फॉल्ट्स फाइंड करता था हमेशा. एक बार की बात है, द्रोणाचार्य ने बुला लिया. द्रोणाचार्य ने बोला, दुर्योधन जी भाई साहब आओ, हमारे शिष्य जी आओ. दुर्योधन ने बुला लिया. आगे हमारे दुर्योधन जी अब बोले कि गो इन द किंगडम एंड फाइंड आउट इफ देयर इज समबडी बेटर देन यू. गो इन द किंगडम एंड फाइंड आउट इफ देयर इज समबडी बेटर देन यू. दुर्योधन गया, बड़े सिंसियरिटी के साथ होमवर्क कर रहा था, अपने गुरु के द्वारा दिया गया. बड़ा सिंसियरिटी से जाके हर एक को झांक के देख रहा था, यार ये मेरे से अच्छा है क्या, यार ये मेरे से अच्छा है क्या, यार ये मेरे से अच्छा है क्या. पूरा किंगडम में चला गया. बहुत टाइम के बाद आया, 1 महीने के बाद वापस आके बोलता है, गुरुजी बहुत मेहनत करी मैंने, लेकिन बताऊं क्या आपको, कोई मिला ही नहीं. कोई मिला ही नहीं. देयर इज नोबडी बेटर देन मी. आई एम द बेस्ट. सिंसियरली होमवर्क करके आया हूं मैं. तो फिर बोला ठीक है चलो जाओ अपना काम करो. फिर क्या बोले, युधिष्ठिर महाराज को बुलाए. युधिष्ठिर महाराज जी आइए जरा, अब हमारा शिष्य आपको होमवर्क देता हूँ. बोले होमवर्क देता हूँ. होमवर्क आपका क्या है? गो एंड फाइंड आउट इन द किंगडम इफ समबडी इज इंफीरियर देन यू.
If there is somebody who is, who is lesser than you, you can find out. तो युधिष्ठिर महाराज पे लग के बड़ा होमवर्क था, तो बड़ा सिंसियरिटी के साथ किया उन्होंने, जाके पूरा फिर से किंगडम, उसी किंगडम में जिसमें दुर्योधन गया, उसी किंगडम में युधिष्ठिर महाराज गए, पूरा घूम घूम के चप्पा चप्पा छान मार के 2 महीने बाद आए, बोले सर जी, गुरुजी बहुत मेहनत कराई आपने, सबको जाके देख लिया, लेकिन आपको बताता हूँ, आई वांट टू टेल यू वेरी ऑनेस्टली, आई एम द लीस्ट, एवरीबॉडी इज बेटर देन मी, एवरीबॉडी इज सो वंडरफुल, आई एम द लीस्ट। द्रोणाचार्य बोले देखो ये होता है एटीट्यूड, और ये होता है दुर्योधन का एटीट्यूड। दुर्योधन चले गए किस वर्ल्ड व्यू में? होटल वर्ल्ड व्यू में, मेरे को सब कुछ होना चाहिए, मेरे हिसाब से मैं बेस्ट हूँ। और जो दूसरा एटीट्यूड होता है वो होता है युधिष्ठिर का, जो आपके सामने मैं दिखाने जा रहा हूँ, मेरे स्लाइड में देखिएगा, यहाँ पे आपको तुरंत दिखेगा अभी दूसरा वर्ल्ड व्यू आपके लिए सामने, आपके जो है स्कूल वर्ल्ड व्यू, ये होता है युधिष्ठिर महाराज का वर्ल्ड व्यू। आपको अगर नाम याद ना रहे, होटल और स्कूल, तो दुर्योधन और युधिष्ठिर याद कर लेना, ठीक है ना। स्कूल वर्ल्ड व्यू क्या है, इसमें क्या करते हैं आप? आई नीड टू लर्न एंड फॉलो द रूल्स विद व्हिच द यूनिवर्स रन्स इटसेल्फ एंड आई विल अलाइन माई सेल्फ विद दोज प्रिंसिपल्स। सर जी, भाइयों बहनों, देवियों सज्जनों, it will not happen that the world will follow your expectations, you will have to follow the universal principles. The world is not designed to just make you happy, the world is designed to teach you how to become happy. The world is not designed to just make you happy, the world is designed in such a way, if you learn the principles you can be happy. When you go to a school, you do not say, madam idhar aao, इधर मैडम इधर आपको बताता हूँ, है ना। When you are setting the question paper ना, question number 1, question number 2, question number 3, question number 4, ये 4 क्वेश्चन देना, ठीक है, लेके आओ क्वेश्चन पेपर लेके आओ ऐसे करते हो क्या? ऐसे करते हो आप? नहीं करते ना भाई। स्कूल में जाते हो तो मैडम जो आपको क्वेश्चन देते हैं वो आपको करने पड़ते हैं, चॉइस नहीं होता है कि नहीं। 4, चलो थोड़ा बहुत चॉइस हो सकता है, मान लो 10 में से 8 करने हैं, वो अलग बात है, लेकिन चॉइस नहीं होता कि वो क्वेश्चन आपके बनाए हुए क्वेश्चन को दे देगा वो, है कि नहीं। You do not get the that your questions which you want they will come there. No sir जी, है ना, no madam जी, ऐसा नहीं होता। आपको करना क्या होता है? टीचर से पूछना होता है, सर जी लेसन सिखाओ आप। लेसन सीखूंगा फिर उसके बाद अप्लाई करूंगा, कि नहीं। उसी प्रकार से ये जो यूनिवर्स है ना, ये ऐसे डिजाइन नहीं किया है कि आपको ही सेटिस्फाई करना, एक होटल बना दिया आपके लिए। ये ऐसा डिजाइन किया है कि स्कूल बनाया है, यू हैव टू लर्न द प्रिंसिपल्स देन यू कैन बी हैप्पी। इफ यू लर्न इट यू विल बी हैप्पी, इफ यू डोंट लर्न इट। एटीट्यूड यहाँ पे होता है। युधिष्ठिर महाराज को देख लो, अरे इतना अत्याचार किया भाई उसके साथ, आप सब लोग को पता है ना, बाहर भेज दिया 12 साल की, तो किंगडम से बाहर चला जा, लूट लिया, उसकी सारी प्रॉपर्टी लूट ली, उसके वाइफ के साथ ऐसे गड़बड़ सड़बड़ कर दिया, सब कुछ किया। लेकिन क्या है, हमारे युधिष्ठिर महाराज ना स्कूल वर्ल्ड व्यू में थे, हमेशा उन्होंने ये देखा कि व्हाट कैन आई लर्न फ्रॉम दिस, हाउ कैन आई इंप्रूव माई सेल्फ, हाउ कैन आई बिकम अ बेटर पर्सन, हाउ कैन आई लिव इन सच अ वे दैट आई डोंट हर्ट एनीबडी एल्स, है ना। उन्होंने इसके ऊपर ध्यान दिया, यहाँ तक कि वॉर को अवॉइड करने के लिए उन्होंने दुर्योधन को ये भी बोला, दुर्योधन देख, तेरे को इतना बड़ा राज्य नहीं चाहिए, चल तू ही ले ले, तेरे को क्या करना है, सिर्फ 5 छोटे गांव दे दे बस। वी आर क्षत्रियस ना, आफ्टर ऑल वी हैव टू रूल बिकॉज़ दैट इज आवर ड्यूटी गिवन बाय गॉड। क्षत्रियस हैव बीन गिवन ड्यूटी बाय गॉड टू रूल, जस्ट गिव अस 5 स्मॉल विलेजेस, वी आर हैप्पी, यू बी हैप्पी, नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम। लेकिन दुर्योधन क्या बोला, दुर्योधन का ग्लास तो इतना बड़ा था कि पूरा किंगडम डालने के बाद भी आधा एम्प्टी रह गया हस्तिनापुर भी डाल दिया उसने इंद्रप्रस्थ भी डाल दिया, फिर भी उसको आधा खाली लग रहा था। बोला मैं नहीं देने वाला तेरे को कुछ भी आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू, ठेंगा दूंगा, ठेंगा इतना भी नहीं दूंगा जितना ठेंगे के ऊपर आता है, इतना भी नहीं दूंगा तेरे को, ऐसा करके बोल दिया हमारे दुर्योधन ने। तो सर जी, भाई और बहनों, देवी और सज्जनों, आपका क्या एटीट्यूड है जीवन, आप इसके ऊपर गौर कीजिए। बहुत अच्छे लोग आप सब लोग, भाई इतने अच्छे परिवार से हो, इस भारतवर्ष में जन्मे हो, इतने अच्छे लोगों के साथ में कांटेक्ट में हो, मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूँ, आप थोड़ा सोचिए आपका एटीट्यूड क्या है, क्योंकि ना सिचुएशन चेंज नहीं कर सकते आप। नेगेटिव पॉजिटिव ना सिचुएशन नहीं होता है, नेगेटिव पॉजिटिव तो आपके अंदर का व्यक्तित्व होता है ना, आपके अंदर के थॉट्स होते हैं, विचार होते हैं, जो एटीट्यूड के ऊपर डिपेंड करते हैं सभी, है ना। तो क्या है, कूल वर्ल्ड व्यू को अपनाना चाहिए हमको, इस वर्ल्ड व्यू को नहीं अपनाना चाहिए, होटल वर्ल्ड व्यू को। एक्सपेक्टेशंस हमारे हमेशा फुलफिल नहीं होने सकते, ये प्लीज आप लिख लीजिए, समझ लीजिए। सारे एक्सपेक्टेशन तो बिल गेट्स के भी नहीं पूरे होते, सारे एक्सपेक्टेशन तो अमिताभ बच्चन के भी पूरे नहीं होते, सारे जो होते हैं ना आपके अरमान, सारे एक्सपेक्टेशन सारे नहीं पूरे होते किसी के भी। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है संसार में जिसके सारे एक्सपेक्टेशन फुलफिल हो सकते हैं, लेकिन ये जरूर कर सकते हो कि यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स को लर्न करके उसके साथ जियोगे ना तो बहुत खुश रहोगे।
ये आपको मैं 100% बोल सकता हूँ। ये प्रोग्राम अटेंड करने के बाद आपको नया जॉब मिलेगा कि नहीं मुझे नहीं पता। ये प्रोग्राम अटेंड करने के बाद आपको तुरंत कोरोना आपके एरिया से खत्म हो जाएगा कि नहीं मुझे नहीं पता। ये प्रोग्राम करने के बाद आपका जो टीचर है या बॉस है उसका एटीट्यूड एकदम से चेंज हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मुझे नहीं पता। लेकिन एक चीज मैं जरूर बता सकता हूँ बिल्कुल, ये है आपका रिस्पॉन्स जो है ना, आपका रिस्पॉन्स इन सारे चीजों में क्या रहेगा वो मैं आप बदल सकता हूँ। अगर ये चाहिए आप तो आप हाँ बोल दीजिए। मैं आपको एक एक्सरसाइज देने वाला हूँ, तुरंत जो है मेरे स्लाइड्स पे चलेंगे और मेरे स्लाइड्स में फिर मैंने क्या बताया है तुरंत देखते हैं। तो आपको एक प्रिंसिपल बता रहा हूँ मैं, तुरंत आप उसको प्रैक्टिस करोगे और चेंज हो जाएगा आपका तुरंत। ये मैं आपको गारंटी के साथ बताता हूँ। अब जो है यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स की बात बताई जाए ना, यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं क्या? पहला यूनिवर्सल प्रिंसिपल जो आपको पॉजिटिव थिंकिंग सिखाता है, इसको समझ लीजिए सर जी, भाइयों बहनों प्लीज, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। कि आप कुछ और कर रहे थे, इधर उधर देख रहे थे, या फिर वीडियो कुछ और देख लिया आपने साथ साथ है ना, ये प्रोग्राम के साथ साथ, तो ध्यान अभी बटाइए मत, यहाँ पे आ जाइए, ये बहुत जरूरी है। अगले 10 मिनट आपके लाइफ को चेंज कर सकते हैं। मैं सिर्फ झूठ नहीं बोल रहा, क्योंकि मैं थोड़ा ना चेंज करने वाला। जो यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स आप अप्लाई करोगे उससे आपका लाइफ चेंज हो जाएगा, ये पक्की गारंटी की बात है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल जो यूनिवर्स आपको सीखना सिखाना चाहता है, आप सीख लोगे तो आप हैप्पी हो जाओगे। आप सीख लोगे तो आपका पॉजिटिव थिंकिंग बढ़ जाएगा, ये गारंटी है। वो है प्रिंसिपल ऑफ ग्रेटिट्यूड। डियर फ्रेंड्स, लेट्स ट्राई टू एक्सप्रेस आवर ग्रेटिट्यूड। डियर all the participants, let us try to express our gratitude for what we have received. Gratitude is a state of heart. Gratitude is the state of heart in which we can grow in any situation of life. Situations will not change. That is not up to our control. All situations cannot be changed. Some things can be changed. Whether you will attend this program or not, that is in your head. Yeah. But electricity will go away or not, that is not in our hand. It is in our hand if we focus. This is what the principle is, gratitude expressing. Are we really thanking those people who have helped us in our life? Do we really go back and think about the contributions of so many people who have made us to come to a level which we have come to? Or we simply keep complaining about what is not in our life? हमारे जीवन में जो नहीं है सर उसका कंप्लेन करते रहते हैं, या फिर हमारे जीवन में जो है उसके लिए कुछ एक्सप्रेस करते हैं ग्रेटिट्यूड। ये आप सोचिए, जरा सोचिए। मैं कितने सारे लोगों को मिलता हूँ, लोग मेरे को इतना कंप्लेन बताते रहते हैं। जो भी मेरे पास आता है ना, ज्यादातर लोग ना कंप्लेन करते हैं, अरे सर जी ये क्यों हो रहा है, अरे सर जी वो क्यों हो रहा है, अरे इसने ये क्यों कर दिया, अरे मेरे को हेल्प कर दो, अरे ये हो रहा है। मैं कहता हूँ कि ये भी ठीक है, लेकिन कुछ आप, जैसे पिछली बार एक मैंने प्रोग्राम दिया, सुइसाइड के ऊपर प्रोग्राम दिया था मैंने, हाउ टू अवॉइड सुइसाइड। तो करीबन जो 200 लोग अटेंड कर रहे थे, और मैंने जैसे ही प्रोग्राम किया मेरी घंटी बज गई घंटी बज गई, फोन किए, बोले सर जी आपने तो ऐसा धमाल प्रोग्राम दे दिया, मेरा सुइसाइड बचा दिया आपने। बिफोर आई केम टू योर प्रोग्राम आई वाज हैविंग सुइसाइडल थॉट्स, आफ्टर आई केम आउट फ्रॉम योर प्रोग्राम आई एम फीलिंग सो हैप्पी, थैंक यू सर, थैंक यू। उसके बाद तुरंत शुरू ये हो गया, मेरी बीवी ऐसी है, मेरा बच्चा ऐसा है, मेरा ये। मैंने पूछा आप सुइसाइड क्यों करना चाहते हो? तुरंत शुरू हो गया, ये प्रॉब्लम, ये कंप्लेन, ये कंप्लेन। मैंने कहा सर जी एक मिनट रुको ना, थोड़ा सा रुक जाओ ना, आपके बीवी के बारे में कुछ अच्छा बताओ भाई, कुछ किया है उसने आपके लिए जीवन में अच्छा? बोला शायद इतना सोचना पड़ गया इतना सोचना पड़ गया, कुछ तो किया होगा। बोले हाँ पहले वो अच्छा खाना बनाती थी, पहले बनाती थी जब अच्छा खाना बनाती थी तो ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस किया आपने उसको? आप बोलते थे क्या उसको कि मैडम जी आपने खाना बहुत अच्छा बनाया? कभी बोला आपने कि खुराने की बीवी से बोले खुराने की बीवी ने इडली बहुत अच्छी बनाई, तो तूने तो बनाई नहीं हम तो ये बोल देते हैं when we have to find out fault we are so quick, when we have to tell something negative we are so quick, when we have to say gratitude, expression of gratitude, हे भगवान लोग तो कुछ बोलते ही नहीं है इस आदमी को पूछने के लिए 1 मिनट लग गया, बेचारा सोच रहा है कि क्या अच्छा किया मेरे लिए। हम याद रखते हैं क्या? Do we really remember what people have done for us? Do we remember the sacrifices which people have put? Are we grateful for what we are receiving in life? If we are, भाई और बहनों, दिव्यों सज्जनों, नेगेटिव थिंकिंग आपके जीवन में आ नहीं सकता है।
टच नहीं कर सकता आपके जीवन को अगर आप ये एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड करते हो। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो चलो एक एक्सरसाइज करेंगे। आप सब लोग अभी रेडी हो जाओ। मैंने बोला था कि आप सब लोग को इन्वॉल्व करूंगा, मैं खाली बोलने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं जो है ना, जब भी किसी ऑडियंस से बात करता हूँ ना, मेरी सिर्फ एक चेष्टा रहती है कि उन लोग को ना, दे शुड बिकम वेरी हैप्पी, they should learn something nice, they should go with the from the program after full heart satisfaction। तो मैं बोलने के लिए नहीं आया आपके सामने, आपसे करवाने के लिए आया हूँ। क्षमा कीजिए अगर आप सोच रहे थे खाली जो है सुनाएंगे, थोड़ा स्टोरी वोरी सुन लेंगे। नहीं नहीं सर जी, फिर स्टोरी सुनाने से आपका जीवन चेंज नहीं होगा, आपको कुछ करना पड़ेगा। चलिए मैं आपसे कराने वाला हूँ। आपके फॉर्म आपके चैट बॉक्स में देखो, मैं अभी जो है एक क्या करूंगा, एक मैंने गूगल फॉर्म बनाया है और उस गूगल फॉर्म को आप भर दीजिए और फिर देखिए क्या होता है। ऑनेस्टली भरिएगा, ये बस रिक्वेस्ट है आपका, 2 मिनट लेना चाहता हूँ। प्रोग्राम तो वैसे ही अटेंड कर ही रहे हो, तो 2 मिनट दे दो मेरे को, 2 मिनट, बस 2 मिनट आपका। यहाँ पे आ जाओ आपके आपके चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स में आ जाओ इधर। और एवरीवन, ये मैंने लिंक भेज दिया, इसको क्लिक कर दीजिए। इसमें आपको अपना नाम लिखना है और फिर आपसे 3 छोटे प्रश्न पूछे गए, आप जरा सोच के इसका आंसर कीजिए। कुछ ऐसा बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन नहीं है, मैथ्स का क्वेश्चन नहीं है, साइंस का क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन है आपका एप्लीकेशन का, एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड का। प्लीज आपसे कृपा करता हूँ, आप कृपा चाहता हूँ, आप जो है इसको फिल कर दीजिए, है? सब लोग फिल कीजिएगा प्लीज, है? एवरीवन प्लीज फिल दिस, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करनी है ना। आप यहाँ पे थोड़ी ना खाली एंटरटेनमेंट करने आए हो, आप अपना जीवन को अच्छा बनाने के लिए आए हो, ऐसे प्रिंसिपल सीखने के लिए आए हो, ऐसा काम करने के लिए आए हो जिससे कि अब आपका पॉजिटिव थिंकिंग। मैंने बोला था आपको गारंटी देता हूँ, मैं आपको यहाँ पे गारंटी फिलफिल करने वाला हूँ। 25 मिनट में बोला था आपकी लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता हूँ अगर आप मेरा सहयोग दोगे तो यहाँ पे वो है। आइए चलिए आप सब लोग लिखिए, जो आपके स्क्रीन के सामने आएगा वह गूगल फॉर्म आएगा। गूगल फॉर्म में 3 ही प्रश्न है, ज्यादा नहीं है, छोटे से प्रश्न है। पहले तो नाम डाल दीजिए। लिखा है कि एक कोई व्यक्ति ऐसा है आपके जीवन में जिसने आपके लिए कुछ अच्छा किया। कोई ना कोई तो होगा, शायद माँ होगी, शायद बहन होगी, शायद कोई टीचर होगा, शायद पिताजी होंगे, शायद आपकी बीवी होंगी, शायद हस्बैंड होंगे, शायद कोई बच्चा होगा। कोई ना कोई तो होगा ना, कोई ना कोई तो ऐसा होगा जिसने आपके लिए कुछ अच्छा किया। उसको रिमेम्बर कीजिए प्लीज, प्लीज रिमेम्बर कीजिए, उनको याद कीजिए। और याद करने के बाद ना उनको थैंक यू बोलिए, आप कुछ अप्रिशिएट कीजिए उनको, उनके अंदर जो अच्छा था ना, जो आपको अच्छा लगा, वो अप्रिशिएट कर दीजिए। और उसके बाद क्या कीजिए, उनके लिए कुछ एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड कुछ शब्दों में लिख दीजिए। नहीं करवाना चाहता हूँ आपसे, और यह कर लेंगे तो फिर उसके बाद आपके हृदय में क्या होता है वो बस बता देना मुझे। बस आप ये ऑनेस्टली करने की कोशिश करो। आपके सामने फॉर्म आ ही गया होगा, क्लिक करोगे तो गूगल फॉर्म में छोटे छोटे क्वेश्चन से, बड़े नहीं है, कुछ साइंस का नहीं है, कोई मैथ्स का नहीं है, वैसे बड़ा क्विज नहीं पूछ रहा आपसे मैं। घबराओ मत, इसको भर दो। भरोगे नहीं ना तो आपको पता नहीं चलेगा एक्चुअली। आप जरूर भर दो प्लीज। लिंक इज नॉट ओपनिंग, लिंक विल ओपन सर। आप क्लिक कर दो, करो, लिंक ओपन हो जाएगा। फॉर्म मैंने बनाया, क्लिक हो गया। मैंने तो जैसे क्लिक किया आ गया मेरे इसके सामने। क्लिक करो, आप लिंक हो जाएगा सर जी ओपन। मैडम जी फिर से मैं क्लिक कर दो, क्लिक ओपन हो जाएगा। हाँ जी ओपन हो जाएगा, मैंने तुरंत अभी किया, वो ओपन हो गया। आप ये कर दीजिए और फिर सबमिट कर दीजिएगा। तो हाँ, मेरे फॉर्म सामने आपके रिस्पॉन्स आने लग गए। प्रशांत जी ने सबसे पहले रिस्पॉन्स दिया, थैंक यू मैडम, थैंक यू सर, सॉरी, थैंक यू सर। आप एक कोई वैशाली नाम के व्यक्ति को आप अप्रिशिएट करना चाहते हो, ये जरूर कीजिए, हार्ट से कीजिएगा, अपना हार्ट लगा के कीजिएगा, प्लीज कीजिएगा प्लीज। सब लोग करो, 60 अराउंड 55-60 लोग हैं, सब लोग से रिक्वेस्ट है, 2 मिनट दे दो जीवन के, देखो क्या होता है फिर। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ सर, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, क्योंकि प्रिंसिपल मैंने खुद अप्लाई किया हुआ है, इतने हजारों लोगों को बताया हुआ है, हजारों लोगों ने मेरे को जो बोला है उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रहा हूँ। और ये प्रिंसिपल मेरा बनाया नहीं है, शास्त्र में दिया है शास्त्र में दिया, इसीलिए वर्क करने वाला है, 100% गारंटी है ये प्रिंसिपल की। प्लीज आप लोग जरा जरा कोशिश करो प्लीज, कोशिश करो, शर्माना नहीं है। Hare Krishna Prabhuji, please unmute yourself. अच्छा, यू हैड पुट एवरीबॉडी डिफॉल्ट म्यूट है, ओके सॉरी, तो मैं भी म्यूट में आ गया। तो मैं कह रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 मिनट जरूर दो। अगर आप टाइप नहीं कर सकते हो तो क्या, कम से कम आप सोचो उसके बारे में। लेकिन अगर टाइप कर सकते हो तो जरूर करो, इन्वॉल्व करोगे ना तो कुछ होगा आपके हार्ट में। क्या होगा आपके हार्ट में मैं देखना चाहता हूँ।
मैं हार्ट को देखना चाहता हूँ आपके देखना चाहता हूँ भाई, सब लोग देखेंगे, सब लोग खुश हो जाएंगे। देखना, ट्राई करो जी, 2 मिनट देता हूँ आपको, ट्राई करो। जो लोग जो है लिख नहीं पा रहे, टाइप नहीं कर पा रहे, वो जरूर सोच लो, फिर कम से कम जरूर सोच लो। और रिस्पांस मेरे पास बढ़ते चले जा रहे हैं। अभी तक मेरे पास 17 रिस्पांस आ चुके हैं और रिस्पांस आने चाहिए। आप सब लोग की कृपा याचना करता हूँ। और आपके सामने मेरी स्क्रीन आने वाली है, देखिए आपके रिस्पांस आपके सामने, ये आपके सामने आपके रिस्पांस है भाइयों बहनों, यही है। और देखिए क्या बोलते हैं सबके सब। अब वो सब क्या कर रहे हैं, उन्होंने एक व्यक्ति के बारे में अच्छा सोचा, एक व्यक्ति के बारे में एप्रिसिएशन अपना किया, एप्रिसिएशन फॉर एनी पर्सन इन लाइफ हु हैज कम अक्रॉस यू, एक्सप्रेस योर ग्रेटिट्यूड, और लिख दिया ग्रेटिट्यूड। और देखिए तो क्या बोल रहे हैं साहब जी, देखिए ना आप यहाँ पे इस कॉलम को देखिए, फिर आपके आंखों के सामने देखो ना, ये कॉलम को देखो, देखो आपके स्क्रीन में देखो। ऑनेस्टली टेल अस हाउ डिड यू फील व्हाइल राइटिंग अबाउट। देखिए जरा आप सब लोग देखिए, स्क्रीन इतना ही बड़ा हो सकता है मेरा स्क्रीन जो और ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता है ना, लेकिन मैं आपको बोल भी देता हूँ अगर आपको दिख नहीं रहा तो। प्रशांत जी ने जो है सबसे पहले रिस्पांस दिया, और क्या उनका रिस्पांस था, बोले आई एम फीलिंग नाइस, आई एम फीलिंग हैप्पी। प्रोजेक्टा मैडम बोल रही है आई एम फीलिंग वेरी नाइस, आई एम फीलिंग हैप्पी। चारुशीला मैडम बोल रही है आई एम फीलिंग वेरी कंटेंट एंड फुलफिल्ड। क्या नाम है, रघुनाथ, हाँ रघुनाथ जी बोल रहे हैं आई गॉट कनेक्टेड विद देम, हार्ट मेरा एकदम कनेक्ट हो गया, एकदम ऐसा लग गया, अरे क्या बात है ना। आई फील ग्रेटफुल पॉजिटिव। देखो कौन बोल रहा है, मैं तो नहीं बोल रहा ना यार, ये सब लोग मेरे तो दिए गए लोग नहीं, आप ही लोग हो, आप ही लोग, आपके सामने दिखा रहा हूँ मैं आपको। एटीट्यूड क्या है, अरे सामने देख लो सर जी, सामने देख लो मैडम जी, आपके आंखों के सामने, आप सब लोग के रिस्पॉन्स ही है, मैंने नहीं लिखा कुछ भी, सब आपके रिस्पॉन्स है। यहाँ पे स्वप्निल जी ने क्या बोला कि आई एम फीलिंग वेरी नाइस, आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी, आई एम फीलिंग ग्रेट। खुशबू मैडम बोल रही है आई एम फीलिंग वेरी ग्रेट। रिलैक्स फील कर रहे हैं प्रकाश जी, गुड फील कर रहे हैं निशिता जी, निष्ठा वर्मा जी, मन की शांति मिल रही है शैलज जी को। देखिए सब आपके सामने, गूज बम्प भी आ गया, किनको देखो जरा, ये जो आपके पाड़िया जी है ना, एमबी पाड़िया जी, उनको गूज बम्प और हैप्पीनेस लग रहा है, देखो जरा, देखो देखो, आई एम फीलिंग गुड, आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी, नॉट एक्सप्रेस फीलिंग्स बिफोर, ऐसा लग गया। आई फेल्ट वेरी नाइस फ्रॉम बीनीथ माई हार्ट। देखिए सब सर जी, मैं बोल रहा था आपकी आंखों से शायद आंसू निकल सकता है अगर आपने अच्छे से किया तो। आप अगर इसको करोगे ना, मैं सही बता रहा हूँ, आपका जीवन चेंज हो सकता है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, इतना विश्वास के साथ क्यों बोल रहा हूँ, कि मैं खुद करता हूँ ना, इसीलिए भाई मैं खुद करता हूँ इसीलिए बोल रहा हूँ, प्लस इतने हजारों लोगों को बताने के बाद जो उनका एक्सपीरियंस है बता रहा हूँ, और आपकी आंखों के सामने आपका एक्सपीरियंस है सर जी, है कि नहीं आपके आंखों के सामने आपका एक्सपीरियंस है। अभी हमारे पास जो 35 रिस्पॉन्स आए, अगर आप लिख सकते हो तो जरूर लिखिए प्लीज, अगर आप लिख नहीं सकते तो सोचिए, आपके मन में सोचिए ये प्रश्न का कि कौन है वो व्यक्ति जिसको मैं एक्सप्रेस करना चाहता हूँ थैंक्स, उसके बारे में ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहता हूँ, और मेरे हृदय में क्या फीलिंग आती है ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करके। आपके मन से अपने अपने हृदय में सोचिए, सब लोग सोचिएगा। आरती मैडम बोलती हैं कि आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी, नाइस, फुल ऑफ लव। ये देख लो भाई क्या पावर है, ये ग्रेटिट्यूड ऐसी शक्ति है भाइयों बहनों देवियों सज्जनों की आपके पूरे जीवन को चेंज कर सकती है, मैं बता रहा हूँ आपको, असलियत है ये एक्सपीरियंसिंग इनर पीस, गुड, ग्रेट। सो ये सब आपके सामने देखिए सर जी, मैंने कुछ चीटिंग नहीं करी, मैंने बोला था आपको आपकी लाइफ जो है बिल्कुल बदल सकती है। 2 मिनट के एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड से जीवन में हमको इतना पॉजिटिविटी आता है। यदि हम रोज प्रैक्टिस करें तो क्या होगा, सोचिए क्या लाइफ बन जाएगी आपकी, क्या लाइफ बन जाएगी। मैं आपसे एक विनती करता हूँ, आप अगर यह सेशन अटेंड करके आप कुछ सही में लाभ पाना चाहते हो ना, 10 मिनट जीवन के मुझे दे दो, 10 मिनट जीवन के मुझे दे दो प्लीज। करना क्या है 10 मिनट में, रोज ना हमको क्या है ना, हम लोग हमारे जैसे व्यक्ति लोग जो क्या है ना, क्या हो जाता है, ग्रेटिट्यूड आसान नहीं होता, बोलना पड़ता है किसी को तब एक्सप्रेस कर पाते हैं। सही बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, कंप्लेंट्स जल्दी हो जाती हैं, फॉल्ट बहुत जल्दी निकल जाते हैं, किसी ने कुछ गलत किया बोल देते हैं, किसी को अच्छा करता है तो निकलता ही नहीं है मुंह से कुछ यार ऐसा है। तो क्या है ना, आपसे विनती है 10 मिनट दे दो आप मुझे रोज ना, सब सुबह उठ के ना, नहा धो के ना 10 मिनट दे दो आप मुझे बस। करना क्या है, एक डायरी लेनी है, एक पेन लेना है और लिख देना है, हार्ट के अंदर जो लिख देना है, कोई 2 या 3 व्यक्ति जो पिछले 24 घंटे में आपको कुछ अच्छा किए, उनको ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कर दो बस, ये आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। और अगर आप 7 दिन के बाद अपने जीवन को डिफरेंट ना पाओ तो मुझे बोलो ठीक है जी, मैं आपको ईमेल आईडी दूंगा मैं अपना,
एंड करने से पहले आपको मैं ईमेल आईडी दूंगा, आप मेरे को मेल करिएगा। आप सब लोगों का मुझे रिस्पॉन्स चाहिए कि आपका जीवन क्या है, 7 दिन में क्या परिवर्तन आया। देखिए मैं विश्वास के साथ बोल रहा हूँ, इतने सारे लोगों से सुन चुका हूँ इसीलिए तो आप जो है 7 दिन के बाद मुझे मेल कर दीजिएगा और बताइएगा आपका जीवन क्या चल रहा है। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा और मैं बस ये बोलूंगा 10 मिनट ऑनेस्टली दे दो। आज क्या है, संडे है, मंडे से स्टार्ट कर दो। आज तो 2 मिनट किया आपने, कल से सिर्फ 10 मिनट्स दे देना। मैं आपको और बताऊंगा, ऑफ कोर्स अभी प्रोग्राम एंड नहीं हुआ है, अभी और बताना है आपको। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया, आपको ऐसी चीज दे दी है, राम बाण दे दिया है जिसको आपको चलाना है। बाण दे दिया है, चलाना किसको ऐसी, चलाना मेरे को है कि आपको है रावण मरेगा नहीं ना, राम बाण तो आपको चलाना पड़ेगा मैं यहाँ से तो अपने रावण को मार दूंगा, आपको आपके रावण को मारना है कि नहीं। नेगेटिविटी तो रावण है, जो राम बाण ग्रेटिट्यूड है कि नहीं। नेगेटिविटी एक रावण है, आपके हृदय के अंदर जो है ना उसको मारना पड़ेगा। कैसे, राम बाण ग्रेटिट्यूड होता है, चला लो आप रोज चलाओगे, रोज रावण मर। इतना ऐसा रावण है, एक सर अब कटता है, दूसरे दिन अगले बढ़ जाता है मारना पड़ता है रोज उसको। प्लीज आप 7 डेज का आप अटेम्प्ट कीजिएगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, आपको एक और बड़ा प्रिंसिपल आगे समझ। अब हम क्या करेंगे, हम अभी तक पहले आपने सुन लिया मेरे से, अब क्या किया आपने कुछ किया है, अब हम मिल के कुछ करेंगे, ठीक है। अब आ गया तीसरा दौर में जिसमें हम मिल के कुछ करेंगे। मिल के कुछ करने से पहले थोड़ा सा और सुन लीजिए। मिल के कुछ करने से पहले मैं अपने आपको स्लाइड्स पे लेके जाता हूँ। देखिए ग्रेटिट्यूड के बारे में थोड़ा और समझ लीजिए, थोड़ा और सुन लीजिए इसके बारे में, है ना, क्या है भाई ग्रेटिट्यूड, थोड़ा और सुन लीजिए। लोग पूछते हैं कि हाउ शुड आई डेवलप ग्रेटिट्यूड, उसके बारे में आपको 3 फॉर्मूला दे देता हूँ मैं आपको। 3 चीज का छोटा सा फॉर्मूला है, देखिएगा, जो मैंने आपको अभी करवाया है, अभी भी मैंने आपको यही करवाया है, तो ये लेकिन फॉर्मूला सीख लीजिए आप। पहला क्या करना होता है, हमको रिकॉग्नाइज करना पड़ता है। रिकॉग्नाइज करने के लिए कुछ समय चाहिए होता है। सर जी, मैडम जी, आपके जीवन में किसने क्या किया अच्छा, आपके जीवन में कुछ अच्छा हो रहा है कि नहीं, इसको रिकॉग्नाइज के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। हम लोग इतना बिजी रहते हैं, वी आर सो बिजी इन आवर लाइफ ना, इवन द गुड एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ वी आर नॉट एंजॉयिंग, even the good experiences of life we are not having in our heart, we are not recollecting them. So therefore take out a little time to recognize what is good in your life. You need to take out every day some time to think about what is good in my life. ग्लास को एम्प्टी देखने की इतनी आदत पड़ गई है, तो जो आधा फिल होता है ना, वो जो देखते ही नहीं, इग्नोर कर देते हैं। वो तो अरे होना ही चाहिए, ऐसे बोल देते हैं। अरे एक मैं आपको बताता हूँ कि माँ का जो प्रेम होता है ना, फॉर एग्जाम्पल माँ के प्रेम को हम इतना फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं सर जी, हाँ जी, फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। तो माँ आपके लिए कुछ करती है, कुछ रोटी बनाई है आपके लिए, कुछ किया। अभी तो क्या है कि घर में नौकरानियां आती नहीं है ना, तो सब कुछ काम तो घर की महिलाओं को भी करना पड़ता है। आप देख ही रहे होगे आपके कॉलोनी में, आपके घर में, है ना, तो कोई आती नहीं है घर में, कितना काम करती है माँ, आपके कपड़े पे धोती है, आपको खाना भी बनाती है, इतना क्लीनिंग करती है, सब कुछ करना पड़ता है। आपने उसको थैंक यू बोला क्या, थैंक यू बोला क्या, बोला क्या उनको बिठा के, मैडम, मम्मी, या फिर आपकी बहन है या फिर आपकी पत्नी है, उनको बोला क्या आपने कि आप मेरे लिए इतना करती हो, बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे बोला क्या? बोल के देखो, तो वही तो बोल रहा हूँ मैं आपको इसी को तो ग्रेटिट्यूड बोलते हैं, है कि नहीं। थैंक यू, आई एम सो थैंकफुल टू यू, यू आर डूइंग दिस फॉर मी। हम तो क्या बोल देते हैं, अरे ये तो होना ही चाहिए, है कि नहीं। महीने के 30 में से 29 दिन जो है झाड़ू लग गई टाइम पे, तो थैंक यू बोला नहीं। महीने के 1 दिन झाड़ू न लगी तो अरे आज तो रूम बड़ा गंदा पड़ा हुआ है। 29 दिन जो झाड़ू लगाई उसके लिए तो कुछ बोला नहीं, 1 दिन जो झाड़ू नहीं लगी उसके लिए तुम तुरंत एकदम तीर चला दिया। तो इसको बोलते हैं लैक ऑफ ग्रेटिट्यूड, है ना सर जी, मैडम जी, समझ रहे हो ना आप, है ना, इसको बोलते हैं लैक ऑफ ग्रेटिट्यूड। तो हमारे जीवन में नेगेटिविटी क्यों होती है ना, क्योंकि हमारा एटीट्यूड वैसा है। It is all about attitude. It is not about the situations. है कि नहीं। If you are grateful, हाँ सही बोल रहे हैं ख्याति मैडम जी, आप सही बोल रही हो। कैजुअल बिहेवियर करते हैं हम लोगों के साथ, हम लोग उनको वैल्यू नहीं देते। We don't value people who are doing good for us, and that is why our life is so negative and filled with so much, critical attitude, and always frustrated, and always wanting, why this is not happening. Hotel world view, है ना, वो ऐसा हो जाता है। तो पहला क्या करना है, पहला स्टेप मैंने आपको बोल दिया कि रिकॉग्नाइज। First, recognize what is happening good, what good is happening in your life. Even if your room is cleaned, that is a good thing in your life, है कि नहीं, that is also a good thing. तो please recognize it, start opening your eyes. उसके लिए टाइम लगता है, थोड़ा सा बैठ के सोचना पड़ता है लोगों को कि भाई अगर झाड़ू नहीं लगी होती तो क्या हो जाता फिर,
ये सोचना पड़ता है थोड़ी देर के लिए। आगे बढ़ते हैं फिर, है ना। स्क्रीन पे मैंने आपको आर 3R का फॉर्मूला दे दिया है, आप इसको लिखना चाहो तो लिख लो, क्योंकि कई लोग फिर भूल जाते हैं तो प्रॉब्लम होती है ना। तो रिमेम्बर, क्या टाइम हो गया? हमारे पास है ना, हमारे पास 5-10 मिनट है, करते हैं। तो दूसरा रिमेम्बर, सेकंड चीज है रिमेम्बर कीजिए आप सर जी, है ना, मैडम जी, सर जी, आप रिमेम्बर कीजिए कि आपको क्या अच्छा किया गया, किसके द्वारा किया गया। फिर क्या कीजिए, रेसिप्रोकेट कीजिए कि वो अगर आपके लिए कुछ कर रहे हैं अच्छा, आप उनके लिए कुछ कर दो। चलिए, आपके पत्नी श्री ने झाड़ू लगा दी, तो कम से कम आप उनको थैंक यू तो बोल दो। चलो आप पोछा नहीं कर सकते, झाड़ू उन्होंने लगाई, आप पोछा नहीं कर सकते, कम से कम थैंक यू तो बोल सकते हैं ना, इतना तो कर सकते हो ना आप, इतना भी नहीं कर सकते। शायद अगर काम वाली नहीं आ रही है तो एक दिन हस्बैंड जो है थोड़ा किचन में जाके थोड़ा हेल्प कर देंगे, तो एक रेसिप्रोकेशन हो जाता है ना, कि नहीं, रेसिप्रोकेशन हो जाता है। लोगों को ना, अगर सिर्फ आप किचन के अंदर घुस गए ना सर जी, तो बहुत अच्छा लगेगा, आपको करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, उतना ही काफी है। घुस के तो देखो जरा। लेकिन आप जो ना कंप्लेंट करते रहोगे ना, तो आपकी बीवी खींचेगी आपको, फिर किचन के अंदर बनाना भी पड़ेगा आपको। ऐसा होता है, लोग बोलते हैं संडे को तू बना, मंडे को मैं बनाऊंगी। क्यों हो जाता है? क्योंकि ग्रेटिट्यूड रखते नहीं हो तो फाइट होती है, तो नेगेटिविटी बढ़ती है ना, बिकॉज देयर इज नो ग्रेटिट्यूड इन लाइफ, देयरफॉर नेगेटिविटी इंक्रीजेस। इफ देयर इज ग्रेटिट्यूड, people are simple people are simple, they don't expect too many big things from you, they just expect you that you recognize the good work done by them and you reciprocate with them, thank them heartfully, appreciate them through your words and do something for them if possible. That is what everybody's need is. So you do that way, ठीक है। तो यहाँ पे आता है, just pause and contemplate last 24 hours what good has been done for you. हाँ, मैं क्वेश्चंस के लिए अभी थोड़ा सा और टाइम, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन आंसर ही करने वाले। Did anyone give me service which I didn't deserve? Did anyone ever did anything good to me? What did they do to me? These are the questions you have to think. Did I thank them or express appreciation or do some service to them? ये क्वेश्चंस आपको पूछने हैं। अब मैं आप लोगों को क्या करने वाला हूँ सर जी, मैडम जी, आप समझ गए ग्रेटिट्यूड के बारे में। अब आपको क्या करने वाला हूँ, मेरा स्लाइड्स यहाँ पे आपके सामने, सॉरी, मेरा स्लाइड्स यहाँ पे आपके सामने। और अब जो है टाइम आ गया है कि आप में से कोई व्यक्ति जो सामने स्लाइड जो है उसको पढ़ के आप हमको समझाएं। अब आपको समझाने का टाइम आ गया है। हमारे पास जो है, बताया था मुझे कि 5:15 तक हम जा सकते हैं क्वेश्चन आंसर के साथ साथ, तो मैंने आपको सब कुछ जो इम्पोर्टेंट चीजें सिखा दी हैं। अब आपसे कुछ पूछना है मुझे, आप हमको समझाइए जरा। आपके सामने स्लाइड है, कोई समझाना चाहोगे क्या? रहना मैडम जी, आपने हाथ उठाया था। You had raised your hands. You would like to explain? Anybody would like to? जाइए मत स्क्रीन, अभी तो टाइम है, आनंद का टाइम आया है, अब जाने मत लगी, अभी टाइम आया है। अभी आपसे मुझे फीडबैक भी लेना है, आपको एक वीडियो लिंक भी देना है ताकि आप देखें उसमें एक चीज, है ना। तो अब आप बताइए, कौन इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे? ट्राई टू एक्सप्लेन दिस। एनीवन वुड लाइक टू एक्सप्लेन? आप क्या कर सकते हो, आप इसमें टाइप कर सकते हो चैट बॉक्स में कि यस आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन। आपका नाम बता दीजिए, हम आपको अनम्यूट कर देंगे। हाँ जी, आपको अनम्यूट कर देंगे यदि आप बोलोगे कि यस यू वांट टू डू दिस। इवन डोंट फील शाय, जस्ट एक्सप्लेन। सम कोड्स विल कम, देयर इज नथिंग राइट और रॉन्ग इन दिस। मैं आपसे, आप उसको पढ़िए और पढ़ के जो भी आता है आप उसको बता दीजिए एक लाइन में। हाँ जी, कार्तिक वर्मा जी, चलिए कार्तिक वर्मा जी होस्ट, आप उसको उनको अनम्यूट कर दीजिए जरा, कार्तिक जी को। कार्तिक जी आपका अनम्यूट हो जाएगा, चलिए बताइए, पढ़िए इसको। अच्छा लगता है अगर आप सब लोग पार्टिसिपेट करते हो ना, आप लोग को आनंद आएगा उसमें। मैं खाली बोलता रहूंगा थोड़ा, उसमें आनंद आता है, सब लोग इन्वॉल्व होंगे उसमें आनंद आता है। ख्याति मैडम भी बोलना चाहती है, चलिए अब उनको अनम्यूट कीजिए एक एक करके। पहले जो सर जी थे उनको अनम्यूट कीजिए। होस्ट है ना आप हमारे साथ में, कहाँ पे गए? IYF मुंबई करके जो होस्ट है उनको अनम्यूट कर दीजिए। ख्याति मैडम ने बोला है, Yes, you can unmute yourself and. हाँ, कार्तिक जी ने बोला। कार्तिक जी चलिए बताइए, पढ़िए, इंग्लिश में पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा। हाँ अच्छा, ख्याति मैडम चलिए, हरे कृष्णा, आप पढ़िए। हरे कृष्णा टू ऑल। एक्चुअली मेरा नाम दीपा है, ख्याति इज माय डॉटर्स नेम। ओह सॉरी। या, सो वी विल स्टार्ट। Yes, please. Am I audible to everybody, na? Very clearly audible, madam. Very clear. Okay, I will try, Prabhuji. I will try. Yes. Okay.
जो मैं हिंदी में बोलूंगी, जो मैंने समझा उस हिसाब से मैं समझाने का कोशिश करूंगी. द फर्स्ट थिंग इट सेज, ये जो स्लाइड है ना, स्लाइड को आप रीड कीजिए, उसके बाद हाँ समझाइए. हाँ हाँ हाँ, शील्ड्स यू फ्रॉम, फर्स्ट पॉइंट इज शील्ड्स यू फ्रॉम नेगेटिविटी. तो हमने अभी तक जो समझा कि अगर हम वी टेक अ पॉज एंड वी थिंक के लोगों ने हमारे लिए क्या किया है, एंड देन वी से थैंक यू टू देम, तो धीरे धीरे क्या होगा, हम लोगों में अच्छाइयाँ ढूंढना शुरू करेंगे. बिल्कुल सही. शुरू में क्या होता है कि हम किसी की अच्छाई देख नहीं पाते. अगर बोला जाता है कि चलो 5 पॉइंट इनके लिए अच्छे लिखो, तो हम 5 में से तो क्या एक भी ढूंढ नहीं सकते. बिल्कुल सही बोल रही है मैडम, आप एकदम सही बोल रही है, एकदम बिल्कुल सही. यस यस. या सो तो हम हमारे मतलब लाइफ से नेगेटिविटी निकल जाएगी, राइट. Now the second point says makes you at least 25% happier. When the negativity goes away, automatically हम लोग खुश होना शुरू करेंगे, खुश हो ही जाएंगे. लाइक वी कम मतलब मोर नियर टू हैप्पीनेस. यस यस, वेरी गुड. The third point says rewires your brain. So ये मैं जिस तरह से समझ रही हूँ वो है कि अभी तक जो हमारा दिमाग में था कि इट वाज लाइक होटल जब हम होटल वर्ड भी था हमारे दिमाग में. या होटल वैल्यू, मेरे हिसाब से चलो, फिर हम लोग धीरे धीरे जैसे लेट गो करना शुरू कर देते हैं, एंड देन वी थिंक कि नहीं चलो उसका भी एक पर्सपेक्टिव है, हम भी वो समझना शुरू करते हैं, तो हमारे ब्रेन में एक न्यू वायरिंग शुरू हो जाती है. लाइक बिल्कुल सही दीपा मैडम. आप एकदम, आपके जो एक्सप्लेनेशन है ना, हम सबको बहुत अच्छे लग रहे हैं. बहुत बहुत धन्यवाद. then the next point is eliminate stress. That is very obvious कि हम जब सबको समझना शुरू करेंगे तब लोग हमें भी समझना शुरू करेंगे, and then we come toward the मतलब स्कूल वर्ल्ड व्यू जब हमारा हो जाता है तो स्ट्रेस ऑटोमेटिकली कम हो जाता है. आप लोग And एक्सपीरियंस कर then- सकते हो, आप लोग एक्सपीरियंस कर सकते हो. अगर ग्रेटिट्यूड जर्नल स्टार्ट कर दिया लिखना, 7 दिन का आपको मैंने वो टेस्ट दिया है, वो प्रैक्टिस करने को बोला है. हाँ जी. यस मैडम. and then we start healing inside outside. वो automatically then it comes हमारे फेस पे दिखने लगता है, हमारे जेस्चर्स में दिखने लगता है, राइट. then it improves our sleep. कई लोगों को ये प्रॉब्लम्स होते हैं कि रात को नींद नहीं आती है, and all those things, सोचते रहते हैं कि नहीं ये हुआ वो हुआ, ऑटोमेटिकली वो सब हो जाता है improve, right? Then the next point says boost self esteem and performance. Obviously when we start conversing, we start expressing our gratitude to all, वो ऑटोमेटिकली हमारे में एक सेल्फ एस्टीम हो जाता है. हमें थोड़ा सा हमें अच्छा लगता है अपने बारे में कि मैंने कुछ अच्छा कार्य किया, कम से कम कुछ तो अच्छा किया मैंने. वही है. तो और एंड क्या होता है कि हम दूसरों को इंस्पायर भी करते हैं ये चीज के लिए, फिर जो मैं खुद एक्सपीरियंस करती हूँ ये चीज, राइट. द अदर पॉइंट सेज enhances the law of attraction. People start attracting towards us because आज के जमाने no one wants रोना धोना and all those things. खुशी को देख के people अट्रैक्ट होते हैं. So that is the law of attraction. करेक्ट. आपको लोग अच्छे लगने लगते हैं. लोग जो है ना आपको बोलते हैं यार बिल्कुल तो अलग लग रहा है. राइट. ऑटोमेटिकली हमारे रिलेशनशिप्स इंप्रूव होने लगते हैं जब सब लोग एक दूसरे को समझने लगते हैं. तो फिर हम ग्रेटिट्यूड क्यों ना एक्सप्रेस करें. दीपा मैडम बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया, मैं बहुत आपका आभारी हूँ. मैडम बहुत बहुत धन्यवाद. अब कोई दूसरे व्यक्ति हैं जो कुछ दूसरा एक्सप्लेन करने को बोलता हो आपको. कितना अच्छा बोला मैडम जी ने, कितना अच्छा बोला. आपको कोई भी इंस्पायर हुए, कोई आप हैंड रेस करो या फिर इस पे चैट पे बोल दो कि मैं करना चाहता हूँ या चाहती हूँ. रीड करके थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है दूसरे स्लाइड को. ये दूसरा स्लाइड आपके सामने छोटा सा इस बार. कोई भी मैडम या कोई भी सर जो है इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर दो. 1 मिनट की बात है बस, है ना. बहुत बड़ा कोई टेस्ट पेस्ट नहीं हो रहा है आपका यहाँ पे. सब आपको पता है ऑलरेडी. आप लोगों को जीवन के खुद के अनुभव है सर जी मैडम जी, है ना. हमारे जैसे लोग तो खाली जो है जो आपके हृदय के अंदर अच्छा ही है ना, बस बाहर निकाल रहे हैं. ऐसा थोड़ी ना कि हम कुछ डाल रहे हैं बाहर से. ऑलरेडी अच्छा ही है, उसको थोड़ा बाहर निकाल रहे हैं बस, है ना. बोलिए कोई करना चाहते हैं, नहीं तो मेरे को चूज करना पड़ेगा. सामने होते तो मैं बोल देता कि सर जी मैडम जी आप बोलो. अभी क्या है इधर वीडियो में है तो चारुशिला मैडम करना चाहते हैं. चारुशिला गिरी मैडम. चलिए हाँ बोलिए मैडम बोलिए. चलिए चारुशिला मैडम जी बोलिए प्लीज. म्यूट कर दीजिए. हाँ
अनम्यूट अनम्यूट नहीं हुआ आपका, आपके साइड से अनम्यूट कर दीजिए। It's unmuted. अच्छा, वो उनकी आवाज नहीं आ रही ना लेकिन। मैडम मैडम आवाज आपकी नहीं आ रही, आवाज जो है ना, आवाज आवाज जो कट आ ही नहीं रही है। अगर आप ईयरफोन यूज कर रहे हो तो ईयरफोन का प्लग निकाल दो, शायद उसके बाद आवाज आ जाएगी। अगर ईयरफोन कर रहे हो तो ईयरफोन निकाल दो तो शायद आवाज आ जाती है उससे, कभी कभी ऐसा होता है। श्रोतागण सब लोग आपसे सुनना चाहते हैं। Audio issue in. अच्छा अच्छा, ऑडियो इश्यूज है मैडम जी का, ऑडियो इशू। नो प्रॉब्लम मैडम, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। आप आपका जो स्माइल से हमें समझ में आ गया कि आपको ग्रेटिट्यूड बहुत अच्छा लग रहा है। आपकी स्माइल से। थैंक यू मैडम। कोई और? एनीवन एल्स कोई रीड करके एक हमारा स्टेटमेंट जो है सामने, बहुत सारे स्टेटमेंट है, आप एक स्टेटमेंट आप कोई समझा दो, हमारे इतने सारे श्रोतागण हैं, कोई भी एक हैंड्स रेज करके। एनीवन एल्स? चार जी कोशिश करो आप। राजेंद्र शिंदे जी, राहुल जी, अगर सब नाम पढ़ रहा हूँ, आप अगर करना चाहते हो तो आप आगे आके अनम्यूट करके अपना बोलिए। जी शर्माइए नहीं, बहुत अच्छा लगेगा आपको। आप बताओगे तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। प्रभु जी मैं ट्राई करूं? जी कौन? प्रभु जी राखी श्रीवास्तव। हाँ राखी मैडम, चलिए बोलिए। यस मैडम प्लीज। प्रभु जी ये जो आपकी स्लाइड है स्क्रीन में जो लिखा है, पहले मैं वो पढ़ देती हूँ और फिर जितना मैं कर सकती हूँ, अदरवाइज आप तो स्टॉलवर्ड हैं ही। बताइए, आपसे सुनना चाहते हैं सब। जी ग्रेटिट्यूड इज द healthiest of all human emotions. The more you express gratitude for what you have, the more likely you will have even more to express gratitude. बिल्कुल। हाँ जी बताइए मैडम। हाँ यस प्रभु जी, कृतज्ञता जैसे हम हिंदी में बोलते हैं इसको। तो जब तक हम एक बहुत ही मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है कि हम जब तक इन पॉजिटिव चीजों की तरफ बढ़ते नहीं हैं तब तक हम उसकी वैल्यू नहीं जानते हैं। लेकिन एक बार हम कभी सोचें कि हाँ हमने, जैसे मान के चलिए मैं अपने जीवन का एक इंसिडेंट आपको बताती हूँ। आई वाज डूइंग बीएड एट दैट टाइम एंड देयर वाज अ गर्ल who was means blind in my batch. And one day she wanted to cross the road. Okay. And she was standing and I was also standing. अभी क्या होता है, वो मेरे पास आती है, कहती है हाय राखी, चलो ठीक है हाय, and she started walking with me and I was also crossing the road and she crossed the road and she said thank you. And later on I realized that she wanted my help and how she came with a smiling, and so that walk from one end of the road to another end of the road, and it was really, it gave me a lot of learning. Means she expressed gratitude and I should feel thankful to her that yes, she gave me such a big lesson. And later, even today I cannot forget all those experiences. And जब हम दूसरों को खुले दिल से बोलते हैं, जैसे फ्रीडम से, आपका दुश्मन भी है, आपका शत्रु भी है, अगर आप उसको बोल दो नहीं आपने यू हैव डन आउटस्टैंडिंग जॉब, उसके बाद अपने आप को देखो कि हमारे जो अंदर का जो विचारों का भावनाओं का जो पॉल्यूशन है वो कितना साफ हो जाता है। और वी फील लाइट, रियली वी फील लाइट, लेकिन हमको करके देखना होगा, है ना। जब तक हम करके नहीं देखते तब तक नहीं हो सकता है। और मैडम जी एक क्वेश्चन है आपसे, एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, आप सब श्रोताओं को, दर्शकों को, हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं सबको बताइए कि जब आपने आपके जो आपके बीएड में जो स्कूल फ्रेंड थी या फिर जो थी आपके साथ, जब आपने उनको क्रॉस कराया रोड जो है, तो उस समय आपके हृदय में कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा था, बहुत अच्छा, क्योंकि तब तक मुझे रियलाइज ही नहीं हुआ कि ये मेरी हेल्प लेके उधर जा रही हैं और मेरी नहीं, उसमें वो भी नहीं होना चाहिए मुझे इतना भी, ये भी भाव नहीं आना चाहिए, ये भी मेरा सूक्ष्म अहंकार ही है अगर मैं इतना सोच रही हूँ कि उन्होंने मेरी वजह से रोड क्रॉस कर पाई। नहीं, मेरे लिए लेसन क्या था कि एक बंदे के पास एक पूरा सेंस नहीं है, लेकिन हाउ पॉजिटिव शी इज इन हर लाइफ, एंड वो चीज मेरे लिए, जब मैं पूरा ठीक है, भगवान ने मुझे सब कुछ सही से दिया हुआ है, तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी लर्निंग थी। और ये बाद में आज भी मेरा ये ग्रेटिट्यूड उनके लिए है कि उनकी वजह से मेरे जीवन में एक बोलते ना एक शुद्धता आई मेरे जीवन में कि हाँ, कई बार हम पूरे होते हुए भी हम बहुत सी चीजें नहीं सिखा पाते हैं, हम अपने उस अहंकार में भरे रहते हैं, हम उससे अपने मतलब एक बोलते हैं गर्व होता है, एक अहंकार होता है, एक स्वाभिमान है, एक आपका अहंकार, हम उसमें ना हम नहीं सोच पाते हैं। बहुत सारे एक्सपीरियंस है, हम कहते हैं ना कि रात में सोते समय किसी ने गलत भी आपके संग किया है ना, उसको भी आप
क्षमा करके सब सो जाओ। क्या बात है, आप दूसरे लेवल पे आ गए मैडम जी। पता है आप ग्रेटिट्यूड के बाद अगर मेरा दूसरा क्लास अटेंड करेंगे, मेरा जो कोर्स होता है ना सीक्रेट्स ऑफ हैप्पी लिविंग में, मैं उसमें फॉरगिवनेस सिखाता हूँ लोगों को। बहुत बहुत बढ़िया है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो देखिए सब लोग, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए आप सब लोग देख सकते हैं कि मैडम जी ने जब कुछ हेल्प करी तो हेल्प तो उन्होंने करी, लेकिन उनके हार्ट में कितना अच्छा लग रहा था। और जब ग्रेटिट्यूड दूसरे ने एक्सप्रेस किया थैंक यू बोल के, इनके जीवन में कितना उसमें चेंज हो गया। सर जी, मैडम जी, ग्रेटिट्यूड सिर्फ आपको अच्छा नहीं, आपको स्माइल नहीं दिलाता है, ग्रेटिट्यूड दूसरे को जो आप बोलते हैं ना उसको भी स्माइल दिलाता है। ग्रेटिट्यूड जो है एक ऐसी चीज है जो हार्ट्स को जोड़ती है, जो कि रिलेशनशिप्स को इंक्रीज करती है, हैप्पी रिलेशनशिप बनाती है, हार्ट को हैप्पी करती है। तो अब मैं क्या करूंगा कि हमारा समय एकदम खत्म होने वाला है, तो अब मैं ही रीड कर देता हूँ कुछ स्टेटमेंट्स, क्योंकि जरूरी है आपको समझना। Thankfulness is the beginning of gratitude. Thankfulness is the beginning of gratitude. Gratitude is the completion of thankfulness. Thankfulness may consist merely of words. Gratitude is shown in actions also, है ना? समझ लीजिए कुछ और स्टेटमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जाइएगा नहीं। Gratitude is the best medicine. It heals your mind, your body and your spirit also, है ना? The struggle ends when the gratitude begins. आपके जीवन के स्ट्रगल खत्म हो जाते हैं जब आपका ग्रेटिट्यूड शुरू हो जाता है। It's not happiness that brings us gratitude, it's gratitude that brings happiness. लोग सोचते हैं जब मैं खुश होऊंगा तब ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करूंगा। उल्टा बोलता हूं मैं कि जब ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करोगे ना तब खुश होगे। तो वेट मत करो, स्टार्ट करो, है ना? Reflect upon your present blessings of which every man has plenty, not on your past misfortunes of which all men have some. Men women की बात नहीं है यहाँ पे, ग्रेटिट्यूड की बात है। है ना? चलिए एक और, all virtues have their origin in gratitude. सारे अच्छे क्वालिटीज कहाँ से शुरुआत होती है? ग्रेटिट्यूड से। ओके, एक और चीज समझ लीजिए, ऑफ ऑल डिस्ग्रेसफुल बिहेवियर देयर इज नथिंग वर्स देन इनग्रेटिट्यूड। तो भाई और बहनों, देवी और सज्जनों, क्या मैं आपसे ये मांग नहीं सकता हूँ? क्या मैं आपसे अभी अधिकार नहीं रखता हूँ? आपसे मैं ये बोल नहीं सकता हूँ कि आप मुझे अपना 10 मिनट देंगे? आप मुझे अपना 10 मिनट देंगे रोज सुबह उठने के बाद? आप रिकॉग्नाइज करेंगे आपके जीवन में क्या अच्छा हुआ, 24 घंटे में किसी ने क्या किया, रिमेम्बर करेंगे उसको और अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करोगे। कम से कम लिख के कर दो, लिख तो दो, शायद बोल भी दोगे। जब सोचोगे तो शायद ऐसा लगेगा कि हाँ इस व्यक्ति ने मेरे लिए इतना अच्छा किया है, याद करोगे ना तो जाके बोल भी दोगे। आप ये ट्राई करो, मैं आपका ईमेल आईडी देके जाऊंगा, अगले सैटरडे को आप मुझे बता देना 7 दिन प्रैक्टिस करने के बाद कि आपका जीवन क्या चल रहा है ना जी। मैंने आपको बोला था यदि आपका आज का प्रोग्राम आपको अच्छा लगेगा, आप क्या करोगे? आप ना मेरे जो फ्रेंड है ना, जिनके लिए मैंने प्रोग्राम किया है, उनको आप उनके लिए प्रार्थना जरूर कीजिएगा, उनका हेल्थ बहुत अच्छा हो जाए। उनको कोरोना वायरस लग गया था, 14 दिन निकल गए, अभी ठीक है वो, लेकिन फिर भी उनके हेल्थ के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और क्या है, आप फीडबैक दिए हुए बिना जाएंगे नहीं, है ना? आपको मैंने इतना सेवा दिया है तो आप फीडबैक जरूर दीजिएगा मुझे। यह फीडबैक फॉर्म है, देखिए इसमें सिर्फ आपको टिक करना है, टिक टिक, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जाइएगा नहीं, इसको फिल करके जाइएगा। फिल, चलिए आपके इसमें आ जाइए, इसमें क्या नाम है, चैट बॉक्स में आ जाइए और यहाँ पे आप फीडबैक फॉर्म जरूर फिल कीजिए। छोटा सा इसमें टिक मार के करना है आपको, कुछ ज्यादा नहीं करना है, टिक 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 करना है। मल्टीपल चॉइस होते हैं ना, टक 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 ऐसे करना है बस, और कुछ नहीं, ज्यादा नहीं है। थोड़ा सा एक स्टेटमेंट लिख देना होगा बस। तो कृपा करके आप जरूर फीडबैक दीजिएगा। और एक और चीज श्रोतागणों, आप सब लोग सुनिए, मैं एक और चीज बताता हूँ। मैंने बोला था क्या ना कि चॉइसेस ना इधर उधर से सुन के नहीं करते हैं, ये अखबार पढ़ के ये सब वो सब करके नेगेटिविटी लेके अंदर नहीं करते, चॉइसेस करते हैं स्क्रिप्चर्स के ऊपर, स्क्रिप्चर्स के बेसिस पे। तो एक चीज आपको मैं जरूर बताता हूँ, ऐसा नहीं है कि यूट्यूब वीडियो से समझा नहीं जा सकता, लेकिन किस तरह के वीडियो से समझते हैं, किस तरह के वीडियो से नहीं समझते, क्या हमको देखना चाहिए अपने यूट्यूब वगैरह पे, उसके लिए मेरा मैंने एक वीडियो बनाया है जो आप 5 मिनट का है। आप इसको अभी नहीं दिखाऊंगा मैं आपका इसको लिंक दूंगा, और वो जो लिंक है ना, उस लिंक को आप देखिएगा, है ना, अपने घर में अपने टाइम में देखिएगा। 5 मिनट का वीडियो है, और अगर आपको अच्छा जरूर लगेगा, मैं बताता हूँ आपको अच्छा जरूर लगेगा, तो करना क्या है, सिर्फ आपको यह देख के, यह जो वीडियो का नेगेटिव इनपुट्स मत लीजिएगा। नेगेटिव इनपुट्स कहाँ पे होते हैं वो मैंने इस वीडियो में दिखाया, आप जरूर देखिए इसको, और देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो आप इस पे कुछ अच्छा कमेंट आप डाल सकते हैं, और आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए। हम चाहते हैं ज्यादा लोगों को ये
ऐसे नॉलेज प्राप्त हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो और आप लाइक कर सकते हो, और आपको अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, क्योंकि वर्ल्ड को ना ये बहुत जरूरी है ये समझना, जो मैंने आज बताया ना आपको, ये सब चीजें समझना बहुत जरूरी होता है. So please see this YouTube video which I put in the YouTube in the link of this one, and if you like it, please subscribe, please send it to your friends, etc. It may help many people's life, because many people today are not knowing the basic thing about how to have right positive attitude in life. हाँ, उसके वजह से लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है. 5 मिनट का वीडियो आप जरूर देखिएगा, आपके YouTube इसमें चैनल मैंने बना के रखा है, यहाँ पे एवरीवन को मैंने चैट बॉक्स में आपको लिंक दे दिया, उसका क्लिक कर लीजिए, क्योंकि मैं एंड करूंगा तो उसके बाद क्या होता है, चैट बॉक्स चला जाता है, उसको क्लिक कर दीजिए. क्लिक करके रखेंगे तो फिर वो खुल जाएगा आपका ब्राउजर में, ये तो एंड हो जाएगा. फिर बहुत धन्यवाद. फीडबैक जरूर दीजिए. क्वेश्चंस किसी का है तो एक क्वेश्चन ले सकता हूँ, क्योंकि फिर उसके बाद फिर मुझे एंड करना पड़ेगा, बिकॉज आई हैव अ प्रोग्राम एट 6 o'clock ऑल्सो, अनदर प्रोग्राम. ठीक है, एक क्वेश्चन किसी का मैं आंसर कर सकता हूँ. फीडबैक जरूर दीजिएगा. फीडबैक का फॉर्म मैंने छोटा सा है, इसमें सिर्फ टिक मार्क करने वाले क्वेश्चन है, घबराइए नहीं. आप अगर दोगे तो मुझे खुशी रहेगी. मैं आपका फीडबैक, उससे मुझे पता चलता है कि अगले प्रोग्राम में मुझे क्या बेटर कर लेना चाहिए, क्या इंप्रूव कर लेना चाहिए, कहाँ पे कैसा एक्सरसाइज और डाल. कभी कभी कुछ लोग जो एक्सरसाइज के सुझाव भी देते हैं, तो उससे और भी आसान हो जाता है दूसरे लोगों को अच्छा एक्सपीरियंस देने के लिए, है ना. तो आप जरूर दीजिएगा. बहुत बहुत धन्यवाद. आप लोग थैंक यू बोल रहे हो, थैंक यू सो मच. सो मेरा ईमेल आईडी है amalmdas.connect. इसमें आप मुझे जरूर बताइए 7 दिन के बाद आपको क्या लगा ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करके. एक और चीज बताऊंगा, ये जो IIF मुंबई आपके लिए जो प्रोग्राम्स लेके आ रहे हैं, इसमें बहुत अच्छे प्रोग्राम्स मिलेंगे आपको. जुड़े रहिए इनके साथ. ये जो हमारे जो सर जी हैं, इनके साथ ये आपको बहुत अच्छे अच्छे स्पीकर्स और बहुत, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, बहुत अच्छे अच्छे लोगों को लेके आएंगे और बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स आपके लिए करेंगे. तो कनेक्टेड रहिए इनके साथ, क्योंकि अच्छे लोगों के साथ जैसे ये हैं, इनके साथ कनेक्टेड रहोगे ना, तो आपको जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ करने को मिलेगा, जीवन का आनंद जरूर बढ़ेगा, है ना. तो इनकी वजह से ही मैं आपको कुछ सेवा कर पाया हूँ, तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ. कि जो सब डिवोटी भक्त लोग जो है, ये IIF मुंबई के जो है ना डिवोटीज लोग, इतना अच्छा मेहनत करके इतना प्रोग्राम करते हैं, इनके लिए भी ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहिए. हमें इनसे जुड़ के रहना चाहिए, ऐसे अच्छे लोगों के साथ. इतने कम होते हैं ऐसे अच्छे लोग जो कि आपके लिए करते हैं इतना सब कुछ, है ना. तो इनको भी ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कीजिए, इनको भी थैंक्स बोलिए और जुड़े रहिए इनके प्रोग्राम्स में. अगले संडे को मुझे लगता है एक और प्रोग्राम करेंगे, तो ऐसे जुड़ रहिएगा, सेशन जरूर अटेंड कीजिएगा. ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद. कोई एक प्रश्न आपका? I think question. I think time is over, Prabhu. So actually, we'll take up the question and answer later. And we are so much grateful. You know, we don't have any words to express the gratitude now, because I think, you know, we will fill up all forms and we'll send you on your email address. That is the only gratitude we can do, and that we express. And today we, you know, in one word, what we can learn from your session, that we need to start, you know, sweeping inside. Andar jhadu lagana seekhenge hum log abhi, rather, you know, sweeping outside. You taught us how to, you know, look inside and sweep. Inside is more, sweeping is more important. We look outward, you know, as you rightly said. And that's what, you know, I think everywhere we will have that mind. And school of, you know, school attitude and the hotel attitude. Everyone will think in that now. Everyone who is going to hotel, oh yeah, this is attitude and the school. So we are very, you know, we don't have any words to express gratitude for your taking wonderful assignments, and really the feeling of heart was really wonderful. I'm sure all the audience are with me. And with this, we'll have to again express the gratitude to you, with, you know, what are the small words, and thank you to you. We'll look again forward for your such wonderful sessions in future also. Thank you to all of you. I wish that you please remain connected with devotees like Prabhuji, and please keep attending their programs. They are going to arrange such wonderful sessions for all of you. And sure. I'm really thankful for Prabhuji for organizing. Thank you so much, Prabhu. Please, I remind to all the participants, please kindly give your feedback. Feedback form link I have just now pasted. In case if you got disconnected, I have just now pasted it. Sure. And please watch that video on what way you should, what knowledge is good for you, what knowledge is not good for you. ये भी जानना जरूरी होता है. तो सब कुछ मैं एक सेशन के अंदर कवर कर पाऊंगा तो फिर तो मतलब हमको जो है 10 घंटे लगाने पड़ेंगे. उसके जगह में क्या किया है कि 5 मिनट्स का हमने वीडियो बनाया है, क्योंकि जो मैं सेशन में बोलता हूँ उसको कंप्रेस करके वीडियोस बनाते हैं हम, है ना, छोटा सा बनाना होता है. तो आप जो देख सकते हो, और अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा.
हमको ज्यादा लोगों को ये नॉलेज भेजना है और समझाना है, तो आप इसको Yes. दूसरे लोगों को भी फॉरवर्ड कर सकते हो और बता सकते Yes. हो, और Yes, वो सारे thank you. लोग आपके प्रभु जी के प्रोग्राम में भी आ सकते हैं। Thank you very much. And as Prabhu said, you know, we just pray everyone for, you know, Anand Murali Prabhu's recovery and his speedy recovery of the Khadgar also. So we are thankful to you, everyone, and looking forward for your further participation. You can just share to your friends also and near dear ones, so that maximum can be participated. So thank you very much. Thanks a lot. Again, we are grateful to all of you for wonderful participation and with full involvement of your heart. That's what been the, you know, this ending words for this. So thank you very much. Hare Krishna. And the email ID I'm giving you. Yeah, we'll be sharing. Yeah, we'll be sharing this presentation on the WhatsApp also to all of you, so that, you know, we can just rewind this, and, you know, whatever the Prabhuji told, we can do that exercise also. After 6 days or 7 days on Saturday, if you send me mail, how is your life after practicing 10 minutes of gratitude daily? I'll be wanting to see the power of gratitude. Perfect. Perfect. I'm sure everyone will do that. Yes. Thank you so much. Thank you very much. Thanks a lot. Thank you everyone for participating. I'm so grateful. Yeah. Let's